might some topic that I am covering in this session covered by some of the experts, but I will try to explore the new innovative concept of generative AI, that is the advanced field of computer, IT, DS or whatever computer science engineering we consider in the phase of development. So the topic of my today's presentation is generative AI and ethics. Before starting my topic, we take some review of what is generative AI, how that concept get introduced in the field of computer engineering, and from when that concept start booming. So if we see the development of AI, all can aware with the generative AI means we broadly considered as a chat GPT. Nowadays all students or faculty members are using chat GPT, but this is the booming of this generative AI concept is from the 2022 सेशन मीन्स 2022 से काफ़ी इसमें डेवलपमेंट आया. बट इफ वी कंसिडर प्रीव्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्किंग और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, that concept get introduced in 1956, and from 1956 AI, generative AI or artificial intelligence is there in the field of computer engineering. But in 1956 just we use machine learning, means we learn the machine by using intelligence, human intelligence, and we are applying human intelligence to learn the machine. That's why that overall concept is considered as a artificial machine learning. So generative AI is nothing but generation of some innovative content by using previous data. And if we consider artificial intelligence, the only artificial intelligence AI, in AI there is not an innovative content generation. So in generative AI we can develop very new things that are not exist in our system. Means whatever we are virtually assume, if we are able to develop such content, means text, image, that concept considered as a deep learning. But there is some again problem by exploring the boundaries of deep learning. We are not able to develop a new content, just we are developing the content based on the old data or whatever old database are available with us, like in a synchronized data set, label data set, we can able to develop that content. Means we are able to summarize, we are predict the whatever number come next. Such concepts are there in artificial intelligence. But to develop the origin of the deep learning on AI, we introduce one more concept here as a generative AI. So generative AI is a subset of all of the computer science technology, AI, ML, DL. If we mix together all these concepts of computer engineering in a word one, then concept of generative AI come into the existence, and that generative AI concept work on the concept of unsupervised algorithm. There are two concepts of computer science and engineering: supervised algorithm, unsupervised algorithm. In this lecture I am not going in the depth of any algorithm because that part is quite tedious and quite boring stuff. Just I am giving the overview of all those concepts, so that concepts are useful to you for your further research and further work. Okay. So GI use unsupervised algorithm for the development of the new content and new models. To the what is the generative AI? Generative AI is the combination of artificial intelligence, machine learning and deep learning, and generative AI is considered as a
micro subset of artificial intelligence, machine learning and deep learning. So nowadays all we are using generative AI for the development of n number of things. So generative AI is very useful to us. Means useful in what term? We can develop new content, we can explore the origins of neural network. So there are various neural networks are already exist in our computer system, that is CNN, convolutional neural network, ANN, artificial neural network, RNN, reunite neural network. So n numbers of algorithms already available in the subset of deep learning, but that available neural networks are not up to the mark for the development of new content. So we can use all those algorithms to develop innovative neural network to explore the horizons of deep learning and write a creative neural content by using the generative AI application. You can develop anything in 21st century, means in 2024-25 we can develop anything. Movie, video, clip, PPT. In terms of, I can say that you can develop your research paper, you can develop your fake references also by using ChatGPT. That studies are already did by the innovators. So these are the things what we just now see subset of artificial intelligence. Unsupervised algorithm is there, and that are the advanced applications of the generative AI. Key capabilities of generative AI can be used for the generation of text, image, audio, music, PPT, all those things. Now I go into the basic concept of generative AI, how that generative AI get evolved. For the development of generative AI, we require models. What we require? Models. Because whatever neural network we have existing, that is CNN, RNN, ANN, that are the algorithms and not sufficient to work on the unsupervised data. All those algorithms that are exist with us, that all those algorithms are work only on the supervised data, means whatever data available with us, only on the basis of that data they are develop the result. But for the development of it, but for the work on the unsupervised data, we require some models. Without creating models, we cannot develop our generative AI system. So for foundations, whatever models we use at the beginning of the development of generative AI, all those models considered as a foundation model. So foundation model in simple work, foundation models are the huge neural network architects that train on a massive dataset to solve the particular task. So foundation models, it is nothing but a new वर्क करता है मैथमेटिक्स के ऊपर. CNN जो वर्क है इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर वर्क करता है. RNN जो वर्क करता है वो टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है. बट एवरीवेयर वी रिक्वायर सुपरवाइज्ड डेटा. बट to work on the unsupervised data, we require some neural network and we consider that neural network as a model. क्या बोलते हैं उसको? As a model. So what are the basic components of any model? Model must consist of three things. Number one is the architecture. Number two is the data. Number three is the task. So before proceeding that three terms, I want to ask how many participants are here from particularly computer IT DS background. कितने लोग हैं? क्योंकि कुछ टर्म जब बताऊंगा जो ये ब्रांच से कोरिलेट नहीं होंगे उनको थोड़ा वो कभी लग सकता है. बट मैं
ट्राई करूँगा कि मैं सिंपल वर्ड में उसको आपको कन्वे करूँ। तो आर्किटेक्चर इज नथिंग बट लाइक अ ब्रेन। जो कंपोनेंट होते हैं मॉडल के, आर्किटेक्चर ये क्या है, ब्रेन होता है। तो आर्किटेक्चर के कुछ पैरामीटर्स है। आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूज। इफ वी कंपेयर इन बायोलॉजिकल टर्म, इफ वी टेक अ एग्जांपल ऑफ आवर बायोलॉजिकल सिस्टम, if we consider two animals, ant and human, or any of the animal with human whose brain is more supervised, कोई भी बायोलॉजिकली बता सकता है कि ह्यूमन का ब्रेन आपका क्या है, बहुत अच्छा। वाई वी कंसिडर ह्यूमन ब्रेन इज अ गुड, तो इन जनरल बोल सकते हैं कि एंट का ब्रेन साइज क्या है, कम है, एंट का ब्रेन छोटा है, और हमारा ब्रेन क्या है, बहुत बड़ा है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, कंप्यूटेशनली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मीन्स अपने ब्रेन के अंदर जो वर्क होता है डेटा के ऊपर, वो किसके बेसिस पे होता है, न्यूरॉन। तो साइज ऑफ ब्रेन बड़ा रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की और इंफॉर्मेशन पे वर्क करने की कैपेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सेम में जो नेटवर्क का न्यूरल नेटवर्क है और जो भी मॉडल बोलते हैं, उसका नंबर 1 कंपोनेंट होता है आर्किटेक्चर, जो कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। उसमें n नंबर ऑफ बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। कैसे पैरामीटर्स होने चाहिए, बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए। वो स्केलेबल होना चाहिए, उसके वर्किंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मीन्स वो एक ही डेटा पे काम नहीं करना चाहिए, उसने n नंबर ऑफ डेटा पे क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जैसे अपना ब्रेन सिर्फ खाना ही खाने के बारे में सोचते रहेगा तो अपन उसको अच्छा समझेंगे क्या, वर्क करने के बारे में सोचते रहेगा तो उसको अच्छा समझेंगे क्या, नहीं। तो वी हैव टू वर्क ऑन द मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर, उसकी स्केलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और जो भी वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, जो भी आपका प्रोग्रामिंग रहेगा, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो रिजल्ट कैसे होने चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट। देन वी हैव अ ब्रेन, अपने पास ब्रेन है, मॉडल के पास भी ब्रेन है, बट उसके पास डेटा ही नहीं रहा, तो उसको बायसनेस आएगा क्या। आपके पास ब्रेन है बट आपने इंजीनियरिंग के 7 सेमेस्टर तक पूरी किताब ही नहीं पढ़े, तो यू विल एक्वायर दैट कंसेप्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, नहीं। और जब आप प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए जाओगे और आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप उसको आंसर कर पाओगे क्या, नहीं। सेम वे वॉट एवर आर्किटेक्चर वी हैव इन आवर मॉडल, वी रिक्वायर गुड नंबर ऑफ डेटा। डेटा भी इन टर्म ऑफ जीबीज में चाहिए। कैसा चाहिए, जीबीज में। भी जितना डेटा आप उसको दोगे उतना वो मॉडल क्या करेगा, सीखेगा। तो डेटा का सप्लाई भी आपका कैसा होना चाहिए, अच्छा होना। जो डेटा आप उसको दे रहे हो वो भी डाइवर्स फील्ड का होना चाहिए। कैसे फील्ड का होना चाहिए, डाइवर्स। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे कि वी हैव अ सिम्पटम, मुझे कोल्ड है, ये है, तो आपको चैट जीपीटी क्या देगा, ये करेगा, मेडिकल क्या करेगा, बताए, मेडिसिन बताएगा। बट जो डॉक्टर जैसा बता पा रहा है वैसा बताएगा क्या, नहीं। क्योंकि चैट जीपीटी का जो ट्रेनिंग हुआ है वो मेडिकल फील्ड के डेटा के ऊपर नहीं हुआ है। वॉट एवर डेटा अवेलेबल इन अवर यूनिवर्स, उसने वो पूरा डेटा क्या किया है, वर्क करके पढ़ा है। उसने क्या किया है, पढ़ा है। तो जो आर्किटेक्चर है, जो कंप्यूटर ब्रांच के हैं, देयर आर 2 important architecture are there developed. Number 1 is a transformer architecture. ये गूगल ने डेवलप किया है 2017 में। किसने, गूगल ने 2017 में। इसलिए 2017 के बाद जो एआई का डेवलपमेंट है वो आपको क्या दिख रहा, रैपिड दिख रहा। इसके पहले भी एआई था, 2014 से पहले आपका वर्ड कन्वर्जन वगैरह करता था, इंग्लिश टू हिंदी करके दो, मराठी टू हिंदी करके दो, ये सब करता था। बट उसका कुछ क्या था, लिमिटेशन था। तो बाद में वो टास्क, अभी आपके पास ब्रेन है, अपने उसके एआई में टास्क, रिग्रेशन टास्क होते थे, प्रेडिक्शन होते थे, इमेज देते थे आप उसको कि बोल बेटा ये डॉग है कि कैट है, तो वो क्या करता था, बता देता था कि जो आपने जो इमेज प्रोवाइड किए हैं
बेस्ड ऑन द CNN एल्गोरिथम वो बता देता था कि ये स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, कैट है, बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट डेटा ऑलरेडी ट्रेन ऑन द मशीन लर्निंग। वो क्या किया था, मशीन लर्निंग पे परफॉर्म किया था। बट अगर आप वहाँ पे इमेज डाल के बोल दोगे कि ये क्लास का इमेज है, बताओ इसमें कितने सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, तो ये पुराना AI कैपेबल नहीं था काउंट करने के लिए। तो हाउ वी आर ट्रेनिंग दैट ब्रेन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर डेवलपिंग मॉडल। क्या करते हैं, मॉडल डेवलप करते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन जब कोई भी मॉडल डेवलप होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज द प्री ट्रेनिंग स्टेज, नंबर 1 इज द अलाइनमेंट स्टेज एंड नंबर 3 इज द फाइन ट्यूनिंग। मीन्स प्री ट्रेनिंग मीन्स क्या, आपने ChatGPT को पूरा डेटा में एक मॉडल आपने डेवलप किया, उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसको बहुत सारा पूरे इंडिया का डेटा दे दिया और उसको आप बोल रहे हो पूरा डेटा, उसने व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, पहले उसने दे दिया क्या, डिफरेंट आंसर दिया, उसने बोला नागपुर, तो अगेन रिवर्स जाओगे, करेक्शन करोगे, फिर उसने बोला कोल्हापुर, सही आंसर नहीं आया तो क्या करोगे आप, उसको करेक्ट कर, उसने बाद में मुंबई बोल दिया। तो ऐसे क्या करोगे, वो मॉडल को आप पहले प्री ट्रेन करोगे। कौन से कंसेप्ट से ट्रेन करना है ये आपके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि बीइंग एज ए डेवलपर आप वो मॉडल इस टास्क के लिए डेवलप कर रहे हो, ये आपको पता है, मुझे नहीं पता, तो मैं एक ब्रॉड वे में आपको बता रहा। देन अलाइनमेंट, वॉट एवर आंसर गिवन बाय दैट मॉडल, उसको क्या करेंगे, अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट इसलिए करते हैं कि उसकी इथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल डेवलप इमेज ऑफ माइंड, रितेश, तो मेरी इमेज वो हवा में उड़ते हुए बनाएगा, अच्छा दिखेगा क्या? मेरी इमेज जनरेट कर गया और मैं मरा हुआ पड़ा हूँ, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो यू हैव टू align whatever the result developed by that model whatever result developed by the model, वो result कैसे होने चाहिए, इथिकल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इथिकल होने चाहिए। एंड लास्ट वन इज द फाइन ट्यूनिंग। तो लास्ट में जो भी रिजल्ट n नंबर ऑफ टाइम एक्यूरेसी आती है तो फाइन ट्यूनिंग अपन उसको कंसिडर करते हैं, देन वी सेट दैट मॉडल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। इसके लिए भेज देते हैं इम्प्लीमेंटेशन। बोर हो रहा होगा तो मुझे बता देना, क्योंकि अभी मैं आपको ChatGPT का हिस्ट्री बताऊंगा। देखो, इन दिस सेंचुरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग, ऑल दोज मॉडल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 इज ए लैंग्वेज बेस्ड मॉडल, नंबर 2 है विजन बेस्ड मॉडल, नंबर 3 है मल्टी मॉडल एंड नंबर 4 है डोमेन स्पेसिफिक मॉडल। तो जो भी आपका ChatGPT अप टू 3 वर्जन क्या है, अप टू 3 ChatGPT 1, ChatGPT 2, ये जो थे आपके, और पहले का बुक गूगल बार्ड था, ये कौन से मॉडल पे वर्कआउट करते थे, लैंग्वेज बेस्ड। मीन्स लैंग्वेज बेस्ड वो अनसुपरवाइज्ड डेटा पे वर्क करते थे। जैसे आप क्वेश्चन भेजते थे तो आपको क्या देते थे, आंसर भेजते थे। कोई आप उसको कंटेंट देते थे तो क्या करते थे, समरी डेवलप करके देते थे। कुछ आप और उसको रिक्वेस्ट करते थे, बाइफरकेशन करके दो, क्लासिफिकेशन करके दो, तो वो सब करके देते थे। तो कौन से मॉडल में बेस्ड थे, लैंग्वेज पे। उसके बाद ChatGPT का वर्जन नंबर 3 से अपग्रेडेशन हुआ, DALL-E आया, DALL-E बोलते हैं। कैनवा ने उसमें इनोवेटिव किया, उन्होंने CNN मॉडल को क्या किया, डेवलप किया, और वो मॉडल को जनरेटिव ज्ञान करके एक नया मॉडल डेवलप हो गया, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क मॉडल ज्ञान करके। तो वो विजन बेस ने यूज किया, विजन बेस मॉडल डेवलप हो गए, तो आप क्या कैपेबल हो गए कि नए इमेज बना रहे, इमेज को क्या कर रहे, कैप्शनिंग कर रहे हो, इमेज का क्या कर रहे हो, सेगमेंटेशन कर रहे हो, इमेज के ऊपर क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। तो ये एडवांस रिसर्च बहुत हेल्पफुल हुआ इन द फील्ड ऑफ
medical engineering means whatever X-rays are developed by machine or whatever CT scan report developed by machine, अगर मेडिकली बोल दिया कि ट्यूमर का साइज इतना है तो डेट कम इनटू द सेफ जोन। अगर ट्यूमर का साइज एक इससे बढ़ जाता है तो वी कैन कंसिडर द सिम्टम ऑफ अ कैंसर इज देयर। ये ट्रेनिंग आपने दे दी विजन बेस्ड मॉडल से, फिर आपने एक्सरे वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया और वो रिपोर्ट से उसने देखा कि ये साइज के ऊपर का ट्यूमर दिख रहा है, तो वो अल्टीमेटली एआई क्या प्रेडिक्ट कर देगा, सम डिसीज आर देयर, व्हाटएवर द प्रोबेबल डिसीज आर देयर, वो आपको क्या कर देगा, इनलिस्ट कर देगा। देन है मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, कोडिंग डेवलपमेंट, ऑल दो सॉफ्टवेयर कम इनटू द कैटेगरी ऑफ डोमेन स्पेसिफिक। क्लियर? तो दीज आर दी 4 इम्पोर्टेंट मॉडल। और इसके ऊपर अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाले हैं, एआई वाले और व्हाटएवर अदर ब्रांच स्टूडेंट ऑल्सो, दीज आर दी डेवलपमेंट फेजेस ऑफ एआई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क होना है अभी, एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑल मॉडल। 2030 तक ऐसे ऐसे मॉडल डेवलप होते जाएंगे कि आप जो सोचते हो कार वगैरह, ऑटोमेशन वगैरह, सब पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। देन मैं जो अपन ने 4 मॉडल देखे थे, मैं एक ही मॉडल पे भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मॉडल डिस्कशन काफ़ी टफ और थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट टू गेट दी जर्नी ऑफ जीपीटी और चैट जीपीटी वी हैव टू डिस्कस दैट मॉडल। ठीक है? तो लैंग्वेज मॉडल, उसको एलएलएम बोलते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ओके, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ना, ये डीप लर्निंग के 5 कंसेप्ट है, उसमें का एक है। नंबर 1 कंसेप्ट होता है एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, और चौथा कंसेप्ट है सीक्वेंशियल टू सीक्वेंशियल डेटा ट्रांसमिशन। उसके बेसिस पे आपका क्या बना है, लैंग्वेज मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि जो भी मशीन लर्निंग है, ट्रांसलेटर है, उसको अगर आप कुछ भी डेटा देते हो इंग्लिश में, अगर आई एम रितेश मैंने ऐसे दिया, तो वो भी 3 वर्ड में रिप्लाई करता है क्या, नहीं करता, वो 4 वर्ड में कभी करता है, कभी क्या करता है, 2 वर्ड में करता है। ठीक है? तो क्योंकि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट नहीं है, तो वो डेटा कैसे वर्क करवाता है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस। एक टाइम इंस्टेंस में वहाँ पे क्या होता है, डेटा जाता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं तो आप कंप्यूटर वाले बोलेंगे कि सर ऊपर ऊपर सुपरफिशियल लेवल में बता रहे हैं। मैं जा सकता हूँ, लेकिन अदर पार्टिसिपेंट्स को वो थोड़ा बोरिंग लग सकता है। तो जो एलएलएम मॉडल है वो डीप लर्निंग के सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडलिंग कंसेप्ट पे बना है, और ये अपग्रेडेशन है आरएनएन नेटवर्क का। किसका? आरएनएन मॉडल आर्किटेक्चर का। तो आरएनएन और आर्किटेक्चर में n नंबर्स ऑफ ये है, जनरली 5 ही है। नंबर 1 है 1 to 1, मीन्स इनपुट एक दोगे तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं कि इमेज एक कौन सा है बताओ, तो बताने का कैट का है, डॉग का है, फिश का है, किसका। देन है 1 to many। 1 to many में आता है इमेज कैप्शनिंग। क्या आता है? इमेज कैप्शनिंग। आपने एक इमेज डाल दी और बोल दिए कि इसका डिस्क्रिप्शन लिखो, ये इमेज में क्या है, तो वो क्या दे सकता है, 3-4 आउटपुट क्या कर सकता है, दे सकता है। तो इनपुट क्या है, सिंगल है, आउटपुट कितने हैं, 4-5 है। देन आता है मेनी टू 1। क्या है? मेनी टू 1। ये सेंटिमेंट्स के लिए यूज होता है। मीन्स आपने मूवी के रिव्यूज दे दिए, 5-6 रिव्यूज उसने क्या किया, पढ़ लिया और प्रेडिक्ट कर बोला उसको कि वेदर दैट मूवी इज गुड और वेदर दैट मूवी इज बैड। तो वो क्या करेगा, रिव्यूज देखेगा और रिव्यूज से बताएगा कि ये मूवी बहुत बोरिंग है, मत जाओ देखने। रिव्यूज से बोलेगा मूवी बहुत अच्छी है, जाओ देखने। तो मेनी इनपुट 1 आउटपुट। बट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम अराइज हुआ यहाँ पे मेनी टू मेनी। और यही प्रॉब्लम था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग का जो डेवलपमेंट था उसको क्या कर रहा था, स्टंटेड कर रहा था। क्या कर रहा था, स्टंटेड कर रहा था, कि उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था।
ये दो कंसेप्ट के लिए। तो एक होता है मेनी टू मेनी दो बार है। एक होता है सिंक्रोनस डेटा प्रोसेसिंग और दूसरा क्या होता है सिंक्रोनस डेटा प्रोसेसिंग। तो सिंक्रोनस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, जितने इनपुट दिए उतने आउटपुट आए। असिंक्रोनाइज में प्रॉब्लम था, क्योंकि आपने जब ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर यूज किया मशीन लर्निंग का, उसमें आपने जो भी वर्डिंग दिए उसमें आपने 10 वर्ड दिए और उसने 5 ही वर्ड में ट्रांसलेट करके बताया। और कभी कभी आपने 5 वर्ड दिए तो उसने क्या किया 10 वर्ड में ट्रांसलेट किया। तो ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस ट्रांसलेटर था, इसके ऊपर वर्क नहीं हुआ था अप टू 2014। इसीलिए एआई का फील्ड 2014 तक क्या था डेवलप था, बट अप टू दैट लेवल क्या था डेवलप नहीं था। तो टू डेवलप टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, क्योंकि पहले के जो थे जो भी कंप्यूटर वगैरह अदर भी होंगे, पहले अगर आप ट्रांसलेशन करते थे तो अप टू 1-2 सेंटेंस को अच्छे से क्या करके देता था ट्रांसलेशन, बट मोर देन 30 वर्ड्स के ऊपर 2014 से पहले जो रिसर्च पेपर मैंने पढ़े, ब्लूम करके एक रिपोर्ट है कि नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल्स टू एक्यूरेसी, ये रिसर्च पेपर में पढ़ा था। 30 वर्ड्स तक क्या देता था वो अच्छी एक्यूरेसी देता था, उसके ऊपर नहीं देता था। तो ओवरकम दैट प्रॉब्लम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल डेवलप होते थे। तो इन 2012 to 14 पहला कंसेप्ट आया एनकोडर एंड डिकोडर। कौन सा कंसेप्ट आया एनकोडर एंड डिकोडर आया। एनकोडर एंड डिकोडर का था, उसका क्या था ये सुपरवाइज मॉडल था, अटेंशन मॉडल। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट वेक्टर की जगह हर वर्ड्स जो भी है इसको क्या दिए गया एक अटेंशन वेक्टर असाइन किया गया। आई लव इंडिया, तो आई को एक अटेंशन वेक्टर, लव को एक अटेंशन वेक्टर और इंडिया को एक अटेंशन वेक्टर। और वो अटेंशन वेक्टर एक दूसरे के साथ क्या करता था, एक अटेंशन वेक्टर तीनों वर्ड को पहले क्या करता था मैप करता था, और जितने भी आउटपुट आ रहे थे उसको क्या करता था मैप करता। तो यहाँ पे वर्ड टू वर्ड मैपिंग हो रही थी, इसीलिए क्या हो रहा था कॉन्टेक्स्ट प्रॉपरली समझ रहा था। क्या हो रहा था कॉन्टेक्स्ट प्रॉपरली समझ रहा था। तो मोर देन 30 वर्ड्स के भी पैरा वगैरह क्या हो रहे थे अच्छे से वर्कआउट हो रहे थे। बट यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म इंट्रोड्यूस हो गई। हर वर्ड अगर 50 वर्ड है तो 50 अटेंशन वेक्टर बनेंगे। सेम में आउटपुट 40 में डेवलप हो रहा तो 40 अटेंशन वेक्टर आउटपुट के बनेंगे। तो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा चेकिंग क्या 40 × 15 होगा, 40 × 15 इज 200 रिग्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे कंप्यूटिंग टाइम क्या हो रहा था आपका काफ़ी बढ़ रहा था। मीन्स अगर आप पूरा का पूरा पेपर डालते थे इसका 5-6 पेजेस का तो 5-6 घंटे क्या ले रहा था। और यहाँ पे तो जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा चेकिंग क्या 40 × 15 होगा, 40 × 15 इज 200 रिग्रेशन वगैरह। तो यहाँ पे कंप्यूटिंग टाइम क्या हो रहा था आपका काफ़ी बढ़ रहा था। मीन्स अगर आप पूरा का पूरा पेपर डालते थे इसका 5-6 पेजेस का तो वो 5-6 घंटे क्या ले रहा था। और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का टर्म यूज हो रहा था LSTM। क्या टर्म यूज हो रहा था LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड GRE ग्रेटेड यूनिट करके ये दो टर्म है, ये दो टर्म्स क्या हो रहे थे यूज हो रहे थे। बट यहाँ ये ओवरकम कर दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो नेक्स्ट मॉडल आया इन 2017 ट्रांसफॉर्मर मॉडल, और ये इवोल्यूशनरी मॉडल था इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पे उन्होंने जो दोनों मॉडल्स थे उसको क्या कर दिए ये कर दिए कि ये अच्छे नहीं है। इंस्टेड ऑफ गोइंग सीक्वेंशियल मॉडलिंग दैट मॉडल प्रपोज पैरेलल, मीन जो भी काम होंगे वो क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो ट्रांसफॉर्मर मॉडल और अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये पेपर सभी के लिए बहुत काम का है। जिस नाम है पेपर का उसका साइटेशन लैक्स के ऊपर वो पेपर को क्या है साइटेशन है। कंप्यूटर ब्रांच के जो भी चाहते हैं ये फील्ड में काम करने के लिए अटेंशन इज ऑल यू नीड ये पेपर है गूगल ब्रेन ने खुद इंट्रोड्यूस किया था 2017
प्रोसेसिंग होता था, डिकोडिंग टू इनकोडिंग अच्छे से होता था और कम टाइम ड्यूरेशन में होता था। तो ये ट्रांसफॉर्मर मॉडल आ गया 2017 में। बट ट्रांसफॉर्मर मॉडल को जो ट्रेन करना पड़ता था तो उसको क्या लगता था, बहुत टाइम लगता था। क्या लगता था, टाइम लगता था, क्योंकि कोई भी मॉडल को ट्रेनिंग करना है तो अपने को क्या चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए। आर्किटेक्ट क्या है, बहुत बड़ा, बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर, और जो डेटा रिक्वायर्ड लगता था ट्रेनिंग के लिए वो भी कैसा चाहिए था, वो ह्यूज डेटा सेट चाहिए था। जो किसके पास था, गूगल, फेसबुक, जो बड़े बड़े ये शॉर्ट जो छोटे लोग हैं उनके लिए इतना ये नहीं था। इसीलिए ट्रांसफॉर्मर मॉडल डेवलप होते थे, बट बड़ी बड़ी कंपनीज के होते थे। छोटे छोटे लोकल जो भी डेवलपर्स थे वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास वो डेटा सेट अवेलेबल नहीं था। इसीलिए ये नेक्स्ट कंसेप्ट आया 2018 में, ट्रांसफर लर्निंग। कौन सा कंसेप्ट आया, ट्रांसफर लर्निंग। मींस मैंने एक मॉडल को ट्रेन किया तो वो दूसरे के साथ वर्क करना चाहिए। मींस इफ आई लर्न हाउ टू ड्राइव अ बाइसिकल, देन आई कैन इजीली learn how to drive a bike. तो on this parameter ये ट्रांसफर लर्निंग कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। मीन्स अगर आप एक मॉडल को क्या करते हो, सिखाते हो, तो वो इजीली यूज हो सकता है दूसरे मॉडल के लिए। फिर लास्ट में ये दोनों इनोवेटिव डेवलपमेंट हो गई, कौन सी, ट्रांसफॉर्मर मॉडल एंड ट्रांसफर मॉडल। ये दोनों मॉडल को कंबाइन किया गया। ये दोनों मॉडल को विकिपीडिया पे क्या किया गया, टेस्ट किया गया। विकिपीडिया का जो भी आपका डेटा अवेलेबल था, टेक्स्ट डेटा, उस पर क्या किया गया, टेस्ट किया गया। जो आपका मैंने 3 स्टेजेस बताया था, प्री ट्रेनिंग हुई ये इसकी, उसके बाद क्या हुआ, उसका अलाइनमेंट हुआ, और बाद में फाइन ट्यूनिंग हुआ। और इस प्रकार से इन 2022 जीपीटी एग्जिस्ट में आया। तो जीपीटी इज द मॉडल, क्या है, मॉडल है जीपीटी। सॉफ्टवेयर मींस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है, जीपीटी इज अ मॉडल। और जीपीटी में जो टी लिखा है दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर एंड ट्रांसफर। फिर जीपीटी आया इन 2022, जिसके ऊपर अपन क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे। फिर जीपीटी का एडवांसमेंट हुआ, चैट जीपीटी 1, चैट जीपीटी 2, चैट जीपीटी 3 और चैट जीपीटी अभी डाली ई वगैरह आ गए। तो ये सब था, जो भी ये लैंग्वेज मॉडल था, ये किसके लिए था, सिर्फ टेक्स्ट के लिए। किसके लिए, टेक्स्ट। मींस अपन टेक्स्ट दिए तो समराइज कर सकते हैं, टेक्स्ट दिए तो अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे प्रेडिक्शन ऑफ वर्ड, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, तो अपने आप गूगल बता देता है डेली। तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन। बट ये मॉडल डेवलप करते हुए आपने लैंग्वेज का पूरा ट्रेनिंग दे दिया वो मॉडल को, उसको लैंग्वेज के पूरे कंसेप्ट पता है वो मॉडल को, तो वो लैंग्वेज के पूरे कंसेप्ट पता है वो मॉडल को, तो वो नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट कर रहा। बट वो ट्रेन होते समय उसने लैंग्वेज की पूरी ट्रेनिंग ले ली, तो वो लैंग्वेज के क्या समझता है, कॉन्टेक्स्ट, कि आपने ये चीज बोली तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसको समराइज करने को बोला, जितने वर्ड में बोलोगे उतने वर्ड में वो टोकन जनरेट करके क्या कर देगा, समराइज कर देगा। मींस वो मॉडल लैंग्वेज पे पूरी तरह ट्रेन हुआ, इसीलिए वो फिर क्या हो गया, कैपेबल टू वर्क ऑन एनी कमांड, एंड दैट कमांड इज कंसीडर्ड एज अ अनसुपरवाइज्ड कमांड। और वो वर्क भी कौन से डेटा पे कर रहा है, आपके कमांड के ऊपर, अनसुपरवाइज्ड डेटा के ऊपर, और आपको इनोवेटिव कंटेंट दे रहा, पीपीटी बना के दे रहा, और बहुत कुछ ये दे रहा है। तो दैट इज अ लैंग्वेज मॉडल। अभी मैं बाकी के मॉडल के ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा, अगर आपको लगता है तो बोल देना, लेकिन मैं चैट जीपीटी के आपको एप्लीकेशन यहाँ पे बता दूंगा। जीएनएन करके भी एक बहुत अच्छा है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, बट मैं उसके ऊपर बोलूँगा नहीं, ठीक है। आई स्टॉप हियर। बट ये जीएनएन याद रखना, जितने भी इमेज बन रहे हैं ये कौन से मॉडल से बन रहे हैं, जीएनएन, जनरेटिव एडवर्सरियल। जो भी आप
इमोजी बना रहे हो, ऐप आ रहे हैं आपको कि आपकी फोटो डाल लो, तो उससे क्या बनेंगे, इमोजीज वगैरह बनेंगे, वो सब इससे बनेंगे। तो हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर अवर रूटीन डे टू डे वर्क। तो बेसिकली अपने को डेली क्या चाहिए, चैट जीपीटी से क्या बनना चाहिए, अपना पीपीटी बनना चाहिए। तो आई कैन गिव यू डेमो हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी टू क्रिएट अ पीपीटी इन अ इजी वे। तो मैं चैट जीपीटी के पास चले जाता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ कमांड क्या पे चाहिए पीपीटी, वाईफाई नहीं करी से। So we given text command over here, जो लैंग्वेज मॉडल मैंने डिस्कस किया, what we are putting just command, और ये कुछ सेट डेटा पे वर्कआउट कर रहा क्या, नहीं, अनसुपरवाइज्ड डेटा है, अनसुपरवाइज्ड कमांड है। तो आपका ये बन गया है आपका पीपीटी। सपोज वी कंसीडर चैट जीपीटी हेल्प अस टू डेवलप अ पीपीटी। से मैंने दूसरा कॉपी कर लिया, जो कॉपी हुआ है बट पीपीटी बना देता हूँ। हाउ दैट चैट जीपीटी इज हेल्पफुल टू अस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपीटी। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिक्स आई कैन डू। जो माइक्रोसॉफ्ट 365 है, मुझे लगता है मुझे ग्राफिक्स देना है, तो वो यहाँ पे ग्राफिक्स आपको दे देगा। तो you can develop a graphical PPT by using Chat GPT within a 10 minutes. बट ऐसा नहीं है व्यूअर को, आप इससे इनोवेटिव कंटेंट डेवलप कर सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, अपना दिमाग भी वो टाइप से यूज करना पड़ेगा। तो चैट जीपीटी यूज हो गया, बट मुझे लग रहा है चैट जीपीटी से भी नहीं हो रहा। आई वांट मोर स्पेसिफाइड एंड नंबर ऑफ एआई ऐप दैट आर बेस्ड ऑन द लैंग्वेज मॉडल इज देयर। वन मोर ऐप इज देयर दैट इज द Gamma AI. That Gamma AI is used for the development of PPTs only. इसके लिए यूज हो रहा है PPT डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि डेवलप PPT on पेट्रोल इंजन। ठीक है, वो स्पेलिंग गलत हुआ तो भी हो गया। एक सेकेंड, लेकिन यहाँ पे एक है कि ये AI जो अभी आ रहा है, राइट नाउ दे आर चार्जिंग, बट अप टू सम एक्सटेंट दे आर ऑफरिंग फ्री सर्विसेज। तो ये आपको 10 पीपीटी तक बना देगा, बट यू हैव टू बी अ वेरी प्रिसाइज व्हाट कंटेंट यू आर आस्किंग टू दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अगर आप एक जनरलाइज डालोगे तो वो जनरलाइज देगा, अगर आप उसको स्पेसिफिक डालोगे तो वो क्या देगा, काफी स्पेसिफिक देगा। I can take a any theme
तो यहाँ पे आपकी पीपीटी हो गई है रेडी। अच्छे वो यूजुअल इफेक्ट्स वगैरह वहाँ पे पूरा डाल के वो आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपका हो गया। डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे डाउनलोड नहीं होती, शेयर में जाके एक्सपोर्ट करना, तो दैट पीपीटी गेट डाउनलोड अप टू 10 स्लाइड यू कैन इजीली डाउनलोड फ्रॉम यूजिंग Gamma। अभी you can use your topics also for the development of innovative teaching methodologies। अगर आपको बोलते हैं innovative teaching methodology adopt करके कुछ assessment pattern बनाओ, तो जो just you have to upload your PDF, give a command हो जाए। तो मैं ये नहीं बताया था, but lots of students and faculties are there। आगे में आपको रिसर्च पेपर बनाने हैं बाय यूजिंग लैटेक्स, ऐसे नॉर्मल रिसर्च पेपर नहीं चलते। तो हाउ वी कैन यूज चैट जीपीटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च पेपर, मैं आपको टिक करके बताता हूँ। तो यहाँ से आपकी डेवलप हो गई है पेट्रोल इंजन की पीपीटी। आप इसको इजीली एडिट कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो दिस इज द एप्लीकेशन। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉडल का वहाँ हुआ। नाउ वी आर discussing the concept how that generative AI, ये normal AI नहीं है, that system is generating totally new things, पुराना नहीं कर रहा। अगर आप इसको और एक कमांड दोगे इससे टाइटल, तो आपको पूरी की पूरी 10 पीपीटी वो अलग से डिजाइन करेगा, प्रीवियस कुछ भी वहाँ पे वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसका मॉडल ही है कि जो फर्स्ट डेवलप हुआ उससे नेक्स्ट जो डेवलप होगा वो उसका क्या होना चाहिए, बेटर वर्जन होना चाहिए। अगर वो बेटर वर्जन नहीं होगा तो वो डेवलप नहीं करेगा जनरेटिव। ओके, तो आई वांट सम रिसर्च पेपर। किसी का है क्या रिसर्च पेपर? कम आपको एफर्ट लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है, रिसर्च पेपर जब वो लेता है तो एआई काफी स्मार्ट होता है। जो डेटा उसको लगता है रिसर्च पेपर में कि ये पुराना है, तो वो उसको कंसीडर नहीं करता, वो सिर्फ न्यू डेटा को ही क्या करता है, फर्दर प्रोसेस करता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने अपलोड कर दिया ये रिसर्च पेपर यहाँ पे, एंड आई एम राइटिंग द कमांड।
कॉपी, कॉपी, और यहाँ पे मैं जाऊँगा जो सॉफ्टवेयर के लिए मैंने बोला था ओवरली, जो भी जैसा था यहाँ पे आपका क्या होगा वो लैटेक्स में कन्वर्ट होगा। तो जब लैटेक्स में कन्वर्ट होता है तो सभी डायमेंशन वहाँ पे क्या होती है स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो जो भी स्कोपर्स इंडेक्स के मैक्सिमम पेपर्स होते हैं दे आस्क फॉर योर लैटेक्स फाइल एंड द पेपर इन लैटेक्स इंस्टेड ऑफ वर्ड। तो भी और इसको थोड़ा करना पड़ता है बैठ के, बिकॉज वॉट एवर रेफरेंस वी आर पुटिंग देयर इमेजेस वगैरह ऐड नहीं होती है। तो जस्ट ऑन यूट्यूब पे अगर आप 5 मिनट का ट्यूटोरियल वीडियो देखते हो हाउ टू ऐड इमेज इन दिस प्रोग्रामिंग, तो आपको वो अगेन कोड स्पेसिफाई करके देगा। जस्ट जहाँ जाके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा लैटेक्स में वो पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा। Same way ChatGPT can use for the generation of images also। अभी ये तो हो गया शॉकिंग है, क्योंकि ये मैं आई एम नॉट अ कंप्यूटर इंजीनियर, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, बट जब ये आया तो इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हुआ। देन आई डू दी डीप स्टडी ऑफ दैट ऑल दोस थिंग्स। तो ये तो एप्लीकेशन है, बट इससे ज़्यादा मज़ा आपको मॉडलिंग पे आएगा। जो मॉडल्स वगैरह में आपको बताया जाता ना, क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ इज देयर। सेम वे यहाँ पे आप बोलोगे डेवलप, क्या बोलोगे इमेज, तो ये हेल्प करता है। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आई यूज टू ड्रॉ वेरियस ब्लॉक डायग्राम। तो मैंने उसको बोला मॉडल कार बना दे जो हवा में चल रही है, तो दैट डेवलप मॉडल कार फ्लाइंग इन दी एयर। तो ये कमांड मैंने डाला, बट अभी इतने सारे चीज़ें यहाँ पे आ गई है एआई का यूज़ करके। मैंने तो अभी कम देखा है, बिकॉज हर एक चीज़ के लिए आपको 1 घंटे का टाइम देते और मैं इसको डिटेल में जा सकता हूँ। बट when we develop a generative AI, as a second part of my topic is the ethics is there. We have to be a very ethical while developing all those models. Number one is we have to be a very means अपन बायस नहीं होने चाहिए, नॉन बायस चाहिए। मीन्स अगर आप एक कंपनी ने हायरिंग का सॉफ्टवेयर डेवलप किया था फॉर द हायरिंग ऑफ पीपल, और उन्होंने जो वो मॉडल को ट्रेन किया था डेटाबेस पे, वो मॉडल में सम बायसनेस थे। मीन्स दोज पीपल हैविंग अ हाइट लेस देन 5 फीट वो अच्छे नहीं होते हैं, दोज पीपल हैविंग अ वेट बिलो देन 50 kg वो अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा वो डेटाबेस में चले गए जब उसका लर्निंग वगैरह हो रहा था। तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आया तो वो ऑटोमेटिक उसका क्वालिफिकेशन अच्छा था, सब अच्छा था, एजुकेशनल उसका बिहेवियर, बट जब उसका ट्रेनिंग हो रहा था उसने क्या किया, बायस डेटाबेस पे उसको क्या किया गया, ट्रेन किया गया। तो ऐसे जिनका वेट 50 kg रहता था वो उनको क्या कर देता था, रिजेक्ट कर देता था। तो यहाँ पे जो भी आप डेटा सेट पे उसको ट्रेन कर रहे हो वो डेटा सेट काफ़ी नॉन बायस होना चाहिए, नहीं तो वो एआई को कुछ समझता नहीं, कुछ भी जो पढ़ाओगे ना वो दे देगा। देन सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसर्न है, क्योंकि जनरेटिव एआई से आप रियल इमेज और फेक इमेज दोनों कॉमन बना सकते हो।
सपोज अभी हमारे यहाँ पे एग्जाम सेक्शन है, सीओई का लॉकर रूम है, वहाँ पे कैमरा है, फेस रिकॉग्नाइजेशन वगैरह हो रहा है। तो अगर इमेज ही वैसे डेवलप हो रही है, मेरा फेस और जो एआई जनरेट कर रहा फेस, दोनों का क्या होगा, इमेज सेम रहेगा, तो लॉक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो सिक्योरिटी पैरामीटर्स इज टू मच देयर, ठीक है। देन तीसरा कंसेप्ट आपका एआई का पकड़ लो कि ये जो डेवलपमेंट फेज होता है, इसमें आपको काफ़ी स्किल जो प्रोग्रामर लगते हैं, वो प्रोग्रामर कैसे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। नॉन स्किल्ड प्रोग्रामर एप्लीकेशन अच्छे से यूज़ कर सकता है, डेवलपमेंट पार्ट पे वो काम नहीं कर सकता। तो वाइल AI is good, generative AI is best for our future, but how we are using that technology, ये डिपेंड कर रहा है, बिकॉज AI स्मार्ट होते जा रहा है, बट अपन स्मार्ट नहीं। बी अ स्लेव ऑफ AI, use that technology in constructive mode, that technology become helpful to us. So I stop here. Thank you.